Good morning, students. Myself, Dr. Sonia Nerula from DAVCC Faridabad. Today, I am going to deliver a lecture on the topic Provisions regarding safety of workers under the Factories Act 1948. This topic is relevant for BCom Honors second semester students. The subject is business law. Students, this is Safety video part 3. I had already discussed the provisions given in the safety in my previous two videos from section 21 to 36. As there are numerous provisions for safety, I had already discussed 21 to 36 in my previous two videos. In this video, I am discussing the remaining provisions given for safety of workers from section 37 to 40. Now, let's start. Safety. Safety is basically and primary requirement in a factory. Life of workers must be secure and smooth in any factory. The basic purpose of safety provisions is to provide security to the workers while they are on work in a factory against accidents and dangerous job resulting in injury to the workers. Safety basic requirement है फैक्ट्री के एक्ट के अंदर ऐसा प्रोविजंस दिए हुए हैं सेफ्टी के लिए और बेसिक पर्पस इस सेफ्टी प्रोविजंस के यही है कि जो वर्कर्स हैं उनको कोई भी परेशानी ना हो फैक्ट्री में वर्क करते वक्त. चैप्टर 4 सेक्शंस 21 to 40 of the Factories Act 1948 deals with safety provisions. These two slides I had already discussed in my previous videos. Now I am discussing section 37 to 40 in this video. List of the sections are shown in the slide. Precautions against explosive or inflammable dust, gas, etc. Section 37. Precautions in case of fire. Section 38. Powers to require specification of defective parts or test of stability. Section 39. Safety of building and machinery. Section 40. Maintenance of building. Section 40A. Safety officer. Section 40B. Now I am discussing one by one. First one is explosive or inflammable dust and gas. Section 37. Dear students, section 37 precautions against explosive or inflammable dust, gas, etc. In this point you can write down the four provisions, four subparts. First is related to practical measures to prevent explosive on ignition of gas or fumes. Second one, you can give the provisions regarding chocks and vents, and next one you can give the provisions regarding special measures where explosive or inflammable gas or vapors is under pressure greater than atmospheric pressure, and the next one you can give the provisions regarding state government exemptions. Yes, dear student, first one is practical measures to prevent explosive on ignition of gas and fumes. When in any factory or manufacturing process produces dust, gas, fumes or vapors which is likely to explode on ignition, all practicable measures shall be taken to prevent any such explosive by effective enclosure of plant and machinery used in the process. Second, by removal or prevention of accumulation of such dust, gas, fumes or vapors. And the next one, effective enclosure of all possible source of ignition.
इस पॉइंट में सेक्शन 37 में ये कहना चाह रहा है बेसिकली, अगर किसी भी फैक्ट्री में किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से अगर कोई डस्ट, कोई फ्यूम, कोई स्मोक पैदा होती है, जिसके स्टार्ट होने से क्या होता है, जिसके स्टार्ट होने से एक्सप्लोजन का डर है या एक्सप्लोड होने का डर है, या यू कैन से जिसके प्रज्वलित होने से विस्फोट का डर है, तो उस केस के अंदर क्या करना चाहिए, स्पेशल मेजर्स को, प्रैक्टिकेबल मेजर्स को, उपायों को देखना पड़ेगा, उपायों को यूज करना पड़ेगा। हमको स्पेशल प्रैक्टिकल जो मेजर्स हैं उनको टेकन आउट करना पड़ेगा। क्या कौन कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं, जैसे कि हमें इफेक्टिव एनक्लोजर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो यूज हो रहे हैं प्रोसेस में, उसके रिगार्डिंग हमें प्रोविजंस को देखना पड़ेगा। रिमूवल और प्रिवेंशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट एंड गैस के रिगार्डिंग, और एनक्लोजर ऑफ पॉसिबल सोर्स ऑफ इग्निशन के रिगार्डिंग हमें देखना पड़ेगा। तो यू कैन से ऑल प्रैक्टिकल मेजर्स शैल बी टेकन टू प्रिवेंट एनी सच एक्सप्लोजन। हमें विस्फोट पैदा ना हो या विस्फोट से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव एनक्लोजर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को कवर करना पड़ेगा, एनक्लोजर बना के रखना पड़ेगा कोई वॉल से या किसी तरीके से। रिमूवल करना पड़ेगा, कोई भी गैस, डस्ट, फ्यूम्स इकट्ठी ना हो एक ही जगह पर, और कुछ भी एनक्लोजर के कोई भी इफेक्टिव मेथड का इस्तेमाल करके हमें ऐसा करना पड़ेगा जिससे उस विस्फोट की स्टार्टिंग हो ही ना सके, इग्निशन हो ही ना सके। कुछ हर पॉसिबल सोर्स का हमें अप्लाई करना पड़ेगा जिससे इस चीज का बचाव हो सके। नेक्स्ट हम इसी पॉइंट के अंदर सेकंड प्रोविजन बता सकते हैं चॉक्स और वेंट्स के रिगार्डिंग, कि मान लीजिए जो पॉसिबल प्रेशर है उससे कुछ ज्यादा, जितना प्रैक्टिकल सिचुएशन है उससे ज्यादा अगर प्रेशर हो जाता है तो क्या होता है, एक्सप्लोड होने का डर है। तो उस केस के अंदर भी हमें इन और आउट्स का ध्यान रखना है, मतलब हमें पूरे मेजर्स ऐसे अडॉप्ट करने हैं जिससे बचाव हो सके। तो यू कैन से व्हेन द प्लांट एंड मशीनरी कैन नॉट विथस्टैंड द पोर्टेबल प्रेशर which an explosion would produce, all practical measures shall be taken to restrict the spread of any effects of the explosion. explosion के इफेक्ट को स्प्रेड होने से बचाने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें सारे प्रैक्टिकल मेजर्स लेने पड़ेंगे। हमें इफेक्टिव अप्लायंसेस का यूज करना पड़ेगा ताकि हम बच सके इस एक्सप्लोजन से। नेक्स्ट हम इसी पॉइंट में डिस्कस कर सकते हैं सेक्शन 37 में ही, special measures where the explosive or inflammable gas or vapors is under pressure greater than atmospheric pressure। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो उसका दबाव है, अगर उससे ज्यादा प्रेशर अगर हो रहा है और उस केस में भी अगर कोई एक्सप्लोजन के चांसेस हैं, तो उस एक्सप्लोजन को भी हमें उस एक्सप्लोजन से बचने के लिए भी हमें कई मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि वॉल को स्टॉप वॉल्व लगानी पड़ेगी उसको हमें, ताकि हमारी जो है एक्सप्लोजन ना हो सके। तो उससे रिलेटेड हम इसमें बता सकते हैं, वेयर एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इन अ फैक्ट्री कंटेन एन एक्सप्लोजिव और इनफ्लेमेबल गैस और वेपर्स अंडर प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट पार्ट शैल नॉट बी ओपन अनलेस स्पेशल मेजर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट आर टेकन। वो हिस्सा तब तक खोलना नहीं चाहिए जब तक स्पेशल मेजर्स ना लिए जाएं। ये ना हो कि जो दबाव है वो ज्यादा है और हम खोल दें और एक्सप्लोजन हो जाए। हमें क्या करना चाहिए, स्पेशल मेजर्स लेने चाहिए। दीज मेजर्स आर, कौन सी मेजर्स ले सकते हैं, फर्स्ट यू कैन टेक द मेजर, द फ्लो ऑफ गैस और वेपर्स शेल बी इफेक्टिवली स्टॉप्ड बाय ए स्टॉप वाल्व। स्टॉप वाल्व का इस्तेमाल करके या कोई और साधनों का इस्तेमाल करके हमें क्या करना चाहिए, उस गैस और वेपर्स के फ्लो को इफेक्टिवली स्टॉप करना चाहिए। All practical measures should be taken to reduce the pressure to the atmospheric pressure। हमें जो उसका रियल प्रेशर है, अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो रहा है तो उसको रिड्यूस करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, मेजर्स हमें लेने चाहिए। एग्जाम्पशंस के रिगार्डिंग बता सकते हैं पॉइंट हम इसी सेक्शन 37 में, कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल बनाए, किसी भी फैक्ट्री को एग्जाम कर सकती है इस प्रोविजन सेक्शन 37 के रूल्स के रिगार्डिंग, कुछ कंडीशंस वगैरह लगाकर जो जैसा वो चाहती है स्टेट गवर्नमेंट।
जो निर्धारित कर दिया उन रूल्स के अकॉर्डिंग. That means the state government may by rules exempt any factory from compliance with all or any of the provisions given in section 37 regarding precautions against explosive or inflammable dust, gas, etc. Now I am going to discuss the second point, that is precautions in case of fire, section 38. इसके अंदर हम 4 पॉइंट्स बता सकते हैं सेक्शन 38 में. एक, प्रैक्टिकेबल मेजर्स टू प्रिवेंट आउटब्रेक ऑफ फायर एंड इट्स स्प्रेड. एक बता सकते हैं फेमिलियरिटी ऑफ वर्कर्स विद मींस ऑफ एस्केप. एक बता सकते हैं रूल मेकिंग पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. और एक एडिशनल मेजर्स. ये हम बता सकते हैं इसके अंदर पॉइंट इसको डिस्क्राइब करने के लिए. तो आई एम डिस्कसिंग वन बाय वन. सेक्शन 38 प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर. पहला, इसके अंदर दिया हुआ है प्रैक्टिकल मेजर्स टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ फायर एंड इट्स स्प्रेड. In every factory, all practical measures shall be taken to prevent the outbreak of the fire and its spread, both internally or externally, and to provide and maintain safe means to escape of all persons in the event of the fire and necessary equipments and facilities for extinguishing fire. किसी भी फैक्ट्री में अगर आग लगने का डर हो या आग लगने से रिलेटेड या उसकी स्प्रेड से रिलेटेड हमें कुछ डर हो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें सारे पॉसिबल मींस का इस्तेमाल करना चाहिए. मतलब हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए और पर्सन्स को पता होना चाहिए कि इनकेस फायर लग जाती है तो उनके पास कौन सी ऐसी डोर है जहां से वो जा सकते हैं, मतलब एस्केप हो सकते हैं, निकल सकते हैं, बचाव पा सकते हैं. सेफ मींस क्या है, उनको ये चीज का पता होना चाहिए. तो सेफ मीन्स होने चाहिए, पहली बात साधन होने चाहिए एस्केप करने के लिए, और दूसरा फायर एक्सटिंग्विश भी हमारे पास होना चाहिए, नेसेसरी इक्विपमेंट होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए. सेकेंड पॉइंट हम इसमें बता सकते हैं फैमिलियरिटी. ये नहीं है कि हमें मीन्स टू एस्केप पता ही ना हो कि कौन सी डोर है, कहाँ डोर तो है पर कहाँ है ये ना पता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है या कहीं ना कहीं हमारे पास उसकी चीज है पर वो कहाँ पड़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें वो सारी चीजों की फैमिलियरिटी होनी चाहिए हमारे वर्कर्स को जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं. तो सेकेंड पॉइंट है फैमिलियरिटी ऑफ द वर्कर्स विद मीन्स ऑफ एस्केप. इफेक्टिव मेजर्स शैल बी टेकन टू एश्योर दैट इन एवरी फैक्ट्री ऑल द वर्कर्स आर फैमिलियर विद द मीन्स ऑफ एस्केप इन केस ऑफ फायर एंड हैव एडिक्वेटली ट्रेन्ड इन द रूटीन टू बी फॉलोड इन सच केस. और उनको उसको ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कैसे यूज करना है, किस तरीके से करना है, उसकी एडुकेटली उनके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए और वो ट्रेन होने चाहिए. नेक्स्ट वही एग्जाम्पशन का ही ज्यादातर रूल आ जाता है बेसिकली, या रूल मेकिंग पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट मे मेक्स द रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट्री रिक्वायरिंग द मेजर्स टू बी अडॉप्टेड टू गिव इफेक्ट टू द अबव प्रोविजंस. जो ऊपर लिखे गए प्रोविजंस है सेक्शन 38 की, इसके रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट कोई भी रूल्स रेगुलेशंस निर्धारित करती भी है और भी एडिशनल निर्धारित कर सकती है. एडिशनल मेजर्स का पॉइंट भी बता सकते हैं कि इफ द चीफ इंस्पेक्टर हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द वर्क कैरिड आउट इन द फैक्ट्री, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच फैक्ट्री, special risk of life or safety or any other circumstances, is of opinion that the measures provided in the factories are inadequate, he may by order in writing require that such additional measures as he may consider reasonable and necessary be provided in the factory before such date as is specified in the ऑर्डर. चीफ इंस्पेक्टर को अगर ऐसा लगता है कि अगर कुछ ऐसा है जिससे लाइफ और सेफ्टी पर रिस्क है, तो वो राइटिंग में कुछ भी जो ऑर्डर है वो दे सकती है उसके रिगार्डिंग कि एडिशनल मेजर्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि ऐसी मिसहैपनिंग ना हो, और बिफोर डेट जो डेट दिया उससे पहले पहले रीजनेबल मेजर्स को यूज कर लिया जाए जो उसने एडिशनल मेजर्स बताए हैं ताकि बचाव हो. नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्शन 39. पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी. इफ इट appears to the inspector
that in any building or part of a building or a machinery or part in a factory may be dangerous to the human life and safety, he may ask the occupier or the manager or the board of the factory. अगर इन केस लगता है इंस्पेक्टर को कि बिल्डिंग का कोई हिस्सा या मशीनरी या कोई प्लांट जो डेंजरस है ह्यूमन लाइफ के लिए, तो वो ऑक्यूपायर को भी कह सकता है और मैनेजर को भी कह सकता है या दोनों को भी कह सकता है. क्या कह सकता है? फर्निश करने के लिए, टू फर्निश ड्राइंग्स, स्पेसिफिकेशंस एंड अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी नेसेसरी to determine whether such building, ways, machinery और plant can be used with safety, कि वो बताएं कि उनकी जो ये मशीनरी वगैरह है सेफ्टी यूज हो पाएंगी कि नहीं, और to carry out the test in a specified manner and inform the inspector of the result thereof, कि अपनी उन मशीनरीज का टेस्ट वगैरह करा लें प्लांट एंड मशीनरी का स्पेसिफाइड मैनर में और इन्फॉर्म करें रिजल्ट उसका कि वो सही है या नहीं है, यूजेबल है कि नहीं, यूज की जा सकती है कि नहीं. नाउ द नेक्स्ट वन इज सेक्शन 40, सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी. इसके अंदर हम दो सब पार्ट्स डाल सकते हैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए. पहला, सर्विस ऑफ ऑर्डर बाय इंस्पेक्टर और ऑक्युपायर टू टेक स्पेसिफाइड मेजर इन केस ऑफ डेंजरस बिल्डिंग और मशीनरी और पार्ट प्लांट. और दूसरा, prohibition of use of danger in immense. क्या बता सकते हैं? इफ पहली बात बता सकते हैं हम इसके अंदर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी. इफ एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग और मशीनरी और पार्ट ऑफ प्लांट इन अ फैक्ट्री is in such a condition that it is dangerous to the human life and safety, the inspector may serve to an occupier or a manager or both of the factory an order in writing specifying the measures which in his opinion shall be adopted and require them to be carried out before the date. सेम प्रोविजन है ऊपर की तरह ही, बिल्कुल सेक्शन 39 की तरह, कि अगर उसको लगता है कि बिल्डिंग या उसकी मशीनरी या प्लांट या उसके किसी पार्ट में कोई गड़बड़ी है जिसके कारण उसको ऐसा लग रहा है कंडीशन ठीक नहीं है, जिसके कारण डेंजर हो सकता है ह्यूमन की लाइफ को या उसकी सेफ्टी को, तो वह इंस्पेक्टर के पास पावर है कि वो ऑक्युपायर को या मैनेजर को या दोनों को राइटिंग में ऑर्डर दे सकता है कि जो स्पेसिफाइड मेजर्स कहे हैं जो उसकी ओपिनियन में सही है उनको वो अडॉप्ट करें जो स्पेसिफाइड डेट दिया उससे पहले. और सेकेंड बात हम क्या बता सकते हैं? प्रोहिबिशन ऑफ यूज वेयर डेंजर इज इमिनेंट, वेयर इट अपीयर्स टू द इंस्पेक्टर दैट द यूज ऑफ सच बिल्डिंग और मशीनरी इन्वॉल्व इमिनेंट डेंजर टू द लाइफ, he may prohibit its use until it has been properly repaired or altered. अगर चीफ इंस्पेक्टर को लगता है कि ये बिल्डिंग या मशीनरी बिल्कुल ऐसी कंडीशन में है कि इससे इमिनेंट डेंजर हो जाएगा ह्यूमन की लाइफ और सेफ्टी को, तो वो मना भी कर सकता है कि जब तक ये प्रॉपर्ली चेंज नहीं हो जाती या रिपेयर नहीं हो जाती तब तक इसका इस्तेमाल ना किया जाए. तो आपको पता चल गया होगा कि सेक्शन जो 39 था उसमें भी बेसिकली हम प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बोल रहे थे और यहाँ पर भी प्लांट एंड मशीनरी के डेंजर के बारे में बोल रहे हैं. तो थोड़ा सा इसके अंदर फर्क है. जो सेक्शन 39 था और 40 है वो सिमिलर है, पर दोनों में क्या फर्क है? 39 में पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर के ऊपर जोर दिया है और 40 सेक्शन के अंदर इमेंस या एग्जिस्टिंग डेंजर के ऊपर जोर दिया है, उसके प्रोविजंस के ऊपर बताया. एग्जिस्टिंग और इमेंस का मतलब बेसिकली हो गया विच हैपन्स वेरी सून, नियर या शीघ्र जिसे कहते हैं, और पॉसिबिलिटी का मतलब गया चांस ऑफ डेंजर. तो जो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सेक्शन 39 and 40 are similar in so far as both deals with the safety provisions of of building and machinery, but section 39 contemplates, that means views or observes a possibility of danger, while section 40 contemplates of danger which is immense or existing. Clear? In case of immense danger, the inspector is empowered to prohibit the use of building or machinery until it is repaired or it is altered. Now the next provision. Next provision is section 40A.
मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, where it appears to the inspector that any building or part of a building in a factory is in such a state of disrepair as it likely to lead to condition detrimental to the health and welfare of the worker, he may serve on the occupier or manager or both of the factory an order in writing specifying the measures which in his opinion should be taken and requiring the same to be carried out before such date as is specified in the order. आपने देखा होगा सारे प्रोविजन सिमिलर से ही रह रहे हैं कि इंस्पेक्टर को पता चलता है, इंस्पेक्टर फटाफट ऑर्डर देता है ऑक्युपायर को या मैनेजर को या दोनों को ऑर्डर दे देता है कि स्पेसिफाइड प्रोविजंस जो मैंने कहे हैं स्पेसिफिक डेट से पहले उनको फॉलो करें। तो सेम सिमिलर से ही प्रोविजंस चल रहे हैं। यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग सेक्शन 40A के अंदर क्या कह रहा है, अगर बिल्डिंग की हालत ठीक नहीं है, मतलब डिसरिपेयर कंडीशन में है, बैड कंडीशन में है, बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, मरम्मत की हालत में है, बहुत जरूरत है और अगर उसको ठीक नहीं किया गया तो वो हेल्थ या सेफ्टी ऑफ वर्कर्स के लिए डेट्रीमेंटल है, तो क्या होगा इसके अंदर बेसिकली ऑक्युपायर और मैनेजर को रिटर्न नोटिस जाएगा कि वो फटाफट स्पेसिफिक मेजर्स को अडॉप्ट करे ताकि जो स्पेसिफिक डेट से पहले ताकि ऐसी मिस हैपनिंग ना हो सके। नाउ सेक्शन 40B सेफ्टी ऑफिसर। Safety officer. Section 40B requires the appointment of safety officers in every factory. 40B ये बोलता है कि safety officer हर फैक्ट्री के अंदर होना चाहिए। दो प्रोविजन है इसके। पहला, where 1000 or more workers are ordinarily employed, जहां आमतौर पर 1000 या 1000 से ज्यादा वर्कर्स हैं, वहां पे एक सेफ्टी ऑफिसर जरूर होना चाहिए, वहां पे सेफ्टी ऑफिसर जरूर होना चाहिए उस फैक्ट्री के अंदर। या जहां स्टेट गवर्नमेंट को लगता है उसके हिसाब से भी सेकेंड प्रोविजन है, वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ऑपरेशन इज कैरिड ऑन which involve any risk or injury or any other hazard to the health to the person employed in the factory, the occupier shall, if so required by the state government by notification in the official gazette, employ such number of safety officers as may be specified in the notification. स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है और इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से अगर चांस है बॉडली इंजर्ड होने का किसी वर्कर के, तो वो ऑक्युपायर जो है बेसिकली इसके अंदर वो जो भी ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिस आया उसकी प्रोविजंस को फॉलो करते हुए जितने नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स उसको ठीक लगते हैं, डीम फिट होते हैं, उतने वो उसके अंदर अपॉइंट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन से। और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज को निर्धारित करे। द ड्यूटीज, क्वालिफिकेशंस एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस of safety officer shall be such as may be prescribed by the state government. सारे प्रोविजंस मैंने कवर कर दिए। थैंक यू।